Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So in the Sunday session, we will going to start or we will discuss about the human development related questions and the Pythagorean principle. So according to this, I'll explain or I'll discuss almost 30 questions, and these are very important because recently we had performed in a wave years, and these questions are very typical and hard, and so that we need to prepare more, and according to that, chalo start karte hain. That is the question number 1. Human development is based on certain principle. Which of the following is not a principle of human development? Principle of continuity, principle of sequentiality, general to specific, or reversible. That is option number 4, because in the principle of growth or development, there is no reversible principle, and other principles are very much important also, and these are two present in the developmental principle, but reversible is not. So option number 4 is the correct answer. After that, next, Pythagorean principle is related to dash. Pythagorean principle or Pygate principle is related to which development? That is the psychological, cognitive, physical, emotional. Pythagorean principle is related to cognitive development, cognitive, mental health, schema, assimilation, accommodation of the new or knowledge and new ideas, etc. That is the cognitive development. The right answer is 2, option number 2. Then next, Sita has learned to eat rice and dal with her hand. When she is given the land rice, she makes rice and dal and starts eating. She has dash eating rice. सो यहाँ पे मेंशन है, सीता एक छोटी बच्ची है एंड वो राइस एंड दाल खाना सीखी अपने हाथों से. जब उसने लैंड में चलना सीखा, सो उस टाइम पे वो खुद से राइस एंड दाल बनाते एंड खा लेते मिट्टी में. सो शी हैज डैश ईटिंग राइस एंड दाल इनटू हर स्कीमा फॉर डूइंग थिंग्स: accommodate, assimilate, appropriated, and initiated. So this is the answer, uh, which explain everything. That is, he or she has an idea about the rice, or how to make rice, how to make dal, and how to eat it. So according to this, option number uh, 2 is the correct one. That is the assimilated, right? Assimilated. Okay, next question chalte. That is fitting new information into existing schemas. That is not schemes, that is schemas. Please correct it. दिस वन इज स्कीमास. सो आपके पास कोई एक एग्जिस्टिंग नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, एंड उसमें अगेन न्यू नॉलेज को आप फिट कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? दैट इज एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन. सो दैट इज कॉल्ड द एसिमिलेशन. एसिमिलेशन. नेक्स्ट, there are individual variation in the rate of motor development, yet the sequence of motor development is from dash of dash. So ये जो rate of motor development, not development, only development होता तो ये बोल सकते थे आपका cephalocaudal move कर सकता है, proximo distal कर सकता है, but this one is a motor development. तो according to this, motor development is divided into two parts. मोटर डेवलपमेंट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, GMD. एक है fine motor development. Fine motor development means where small muscles are included. In gross motor development, large muscles, bigger muscles are included. So according to this, अगर आप कहीं पे जंप करते हैं, रन करते हैं, या फिर कोई चीज़ को आप लेके आते हो या फिर उसको खाते हो, ये सब चीज़ें जहाँ पे होगी, दैट इज़ अ GMT, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट, दैट इज जस्ट लाइक होल्डिंग ए पेन और holding a thing. Suppose small muscles are present in your finger, and these muscles are called the flexor muscle because they are so flexible. And according to that, जब भी आप पेन को मूव करना चाहते हो या बुक्स को पकड़ना चाहते हो, तो आपको उसको यूज़ करना पड़ता है. तो ये हो गया राइट आंसर. तो उसके अकॉर्डिंग जब डेवलपमेंट का बात आए, तो फर्स्ट आएगा ग्रॉस इन द बिग सेंस, आफ्टर दैट स्मॉल सेंस फाइन डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, राइट. देन नेक्स्ट चलते हैं. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कीमा कीमा modifying new information to fit existing scheme by modifying old scheme as per new information. These two processes are known as dash.
अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, कीमा कीमा एक गर्ल की नाम है, एंड उन्होंने क्या किया, नैन उसके पास जो भी स्कीमास था, मतलब इंफॉर्मेशन था, उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को डाल दिया, एंड ओल्ड स्कीम्स को, दैट इज ओल्ड स्कीमास और ओल्ड जो इंफॉर्मेशन था उसको मॉडिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलता है। The period that initiates the transition to adult is, दैट इज ये जो ट्रांजिशन है जहाँ पे चेंजेस आता है आपके बॉडी में, एंड आप एडल्टहुड में हम ट्रांजिस्ट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। इसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोग बहुत बार जानते हो, पढ़ भी चुके, एडोलेसेंस। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉय एज रेफर्स टू व्हिच पीरियड। टॉय एज, एक होता है प्ले एज और एक होता है टॉय एज। टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड में आता है, एंड प्ले एज बेबीहुड, दैट इज छोटे बेबी के लिए होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड इज द राइट आंसर, बिकॉज टॉय एज ये है जिसमें बच्चा होल्ड करता है कोई टॉय को एंड खेलता है। देन नेक्स्ट, okay, so which of the following statement is not appropriate to motivation as a process dash. It causes a person to move towards a goal. It satisfies the person's biological need. It helps in achieving psychological ambition. It keeps away from an unpleasant situation. So यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया, नॉट एप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज ए प्रोसेस। मोटिवेशन को हमने एज ए प्रोसेस नहीं लिया, कौन से स्टेटमेंट के लिए, सो दैट इज द इट कीप्स अवे फ्रॉम द अनप्लेजेंट सिचुएशन, ये होगा राइट आंसर। बाकी सब में थोड़ा सा हेल्पिंग नेचर के अकॉर्डिंग आता है, सेटिस्फेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये फोर्थ वन इज द राइट आंसर। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए चाइल्ड विथ हिज with his or her left hand and is comfortable doing things with it. She or he should be dash discouraged, made to write with left hand, allow his preference, and to seek medical help. So medical help and discourage is not the answer, तो वो पहले ही wrong हो गया, and अभी रहा बाकी दो है, तो this one is not correct and this one also। बाकी रहा मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, अलाउ हिज प्रेफरेंस, ये दो ऑप्शंस के अंदर कोई एक होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा प्रेफरेबल होंगे कि मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, हम इसको बताएंगे तुम लिखो इससे, तो ये भी नहीं है। तो दिस वन इज़ द करेक्ट कि वो जिससे स्टार्ट करिए जिस हैंड से, वही उसी को प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज शी इज़ वेरी कंफर्टेबल with it। Okay, so next one, which of the following is not a sign of being gifted। गिफ्टेड का साइन क्या नहीं है, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, poor relationship with peers, interest in the extra reading। so this is the third one, because एक गिफ्टेड क्यूरियोसिटी भी है, क्रिएटिविटी भी है, एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी इंटरेस्ट है, बट ये नहीं होता, सो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नहीं होगा। Language of word is not necessary for dash। Language of word, imaginative thinking, conceptual thinking, associative thinking, perceptual thinking, that is the imaginative thinking। imaginative thinking के लिए language of words की कोई नीड नहीं होती। Okay, which indicates the change in the quality or characters of a child। बच्चों के कैरेक्टर में, क्वालिटी में अगर चेंजेस होना चाहिए तो कौन सा चीज़ चाहिए, ग्रोथ, डेवलपमेंट, लर्निंग, एनवायरमेंट, सो दैट इज द डेवलपमेंट। बहुत लोग होंगे कि लर्निंग के ऊपर जाएंगे, बट दैट इज अ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल बेसिस में होगा डेवलपमेंट। सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय डैश। सिंगल फैक्टर थ्योरी, यूनिफैक्टर भी बोल सकते हैं। सिंगल फैक्टर थ्योरी इज आल्सो नोन एज यूनिफैक्टर थ्योरी, डिस्क्राइब्ड और डिस्कवर्ड बाय डैश। किसने डिस्कवर्ड किया, अल्फ्रेड विने, थॉर्नडाइक, फ्रीमैन, नोन ऑफ देम, दैट इज अल्फ्रेड विने। पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं अल्फ्रेड विने के अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड विने। ओके, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस का फादर कौन है, दैट इज गार्डनर, वाइगोट्स्की, ब्रूनर, पियाजे। बहुत ही इजी कर दी हूँ, ये सब में सो उतना ज़्यादा है नहीं, सो आपको फटाफट पता चल जाएगा, गार्डनर।
गार्डनर इज द राइट आंसर बिकॉज वाइगुट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ब्रूनर पियाजे भी ब्रूनर भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बट पियाजे सोसाइटी के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किए, लैंग्वेज के ऊपर काम किए एंड बहुत सारे चीज़ों के ऊपर काम किए। तो उनकी अकॉर्डिंग पॉइंट्स को लिया जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो उनके पॉइंट्स को हम लेंगे, बट ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने बनाया। ओके, नेक्स्ट वन, who gives more stress to the philosophy of social constructivism? पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोट्स्की, दिवे। अभी मैंने मेंशन किया था कि वाइगोट्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है एंड उन्होंने बहुत कुछ दिया था, लैंग्वेज रिलेटेड, सोशल इंटरेक्शन, दैन सोशल में जो पर्सन्स है, पर्सन्स के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे भी, एंड प्ले इज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी टू बिल्ड योर पोजिशन और प्लेटफॉर्म। सो ये वाइगोट्स्की हो जाएगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन स्टेट रेंजेस फ्रॉम। रिफ्लेक्स एक्शन कब स्टार्ट होता है? जस्ट लाइक कोई भी स्टिमुली आया उसके अकॉर्डिंग जो हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं, कब स्टार्ट होता है? बट टू 30 days ओनली, बट टू 6 months, बट टू 2 weeks, बट टू 6 weeks। दैट इज अ बट टू 30 days के विद इन स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस स्टेट एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा मीन्स होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन धीरे धीरे बढ़ता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, बट हियर वी मेंशन दैट बर्थ टू 30 days ओनली इसका रिफ्लेक्स एक्शन पीरियड मेंशन किया गया, अदरवाइज रिफ्लेक्स एक्शन थ्रू आउट द लाइफ चलता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लर्निंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉग्निटिव डिपेंडमेंट, सॉरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलवेज समटाइम्स नेबर इनकलकेशन। कभी कभी होता है, कुछ कुछ टाइम पे आता है, या फिर कभी नहीं आता, ऑलवेज चलता है। दैट इज द नंबर वन अगेन, ऑलवेज चलता है, ऑलवेज ऑलवेज डिपेंड ऑन लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट चलता है, sucking an object is strong activity in dash. Reflex action or activity stage. Stage of primary circular reaction, stage of secondary circular reaction, stage of secondary circular reaction. Double repeat हो गया options। तो उसके according that is a stage जब start करता है बच्चा कोई भी object को पकड़ के sucking करने, that is a reflex action stage और इसको बोलते हैं activity stage। Next, the best place of social development for a 12 years old child is dash। 12-year-old child है ये, छोटा बच्चा नहीं है। neighborhood, family, playground, school। that is a playground। क्योंकि बच्चा ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। Stage of coordination of secondary schemata ranges from। secondary schemata that means schema formation होगा, stage of coordination उसके साथ coordination का work चलेगा। 9 to 10 months, 8 to 12 months, 10 to 12 months, 6 to 12 months। that is the 8 to 12 months। रिमेंबर करके रखना है पूरा, 8 to 12 months। बच्चा अभी कोऑर्डिनेट कर रहा है अपने नॉलेज के साथ, जो भी उसने सेकेंडरी स्कीमाटा प्रेजेंट किया है या फिर फॉर्मेशन किया है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वर्क करने को स्टार्ट कर रहा है। तो ये दिस इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द एजुकेबल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप इंडिकेटिंग डिफरेंट IQ लेवल। 50 to 70, 30 to 50, 17 to 90, 40 to 80। that is a 50 to 70। दिस आर एजुकेबल ग्रुप, पढ़ सकते हैं, नॉर्मल है, एवरेज में जा रहे हैं। दैट इज एवरेज मीन्स एवरेज तो और भी ज़्यादा आएगा, बट एवरेज बिलो एवरेज भी बच्चे पढ़ते हैं। सो दैट ये नॉर्मली एजुकेबल ग्रुप जितना भी है इंडिया में अगर देखा जाए तो जो एवरेज है उनसे बिलो एवरेज ये लोग हैं, एंड ये लोग भी पढ़े लिखे होते हैं उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग मेंशन। इन व्हिच स्टेज रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ चिल्ड्रन चेंजेस बाय देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। इन व्हिच स्टेज, कौन से स्टेज में रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों का चेंज होता है उनके फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस के थ्रू? स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर स्कीमाटा, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, नॉन ऑफ दिस। that is a stage of primary circular reaction again, stage of primary circular reaction is the right answer। Okay, then next, IQ scores are generally dash correlated with the academic performance। कौन सा होगा? लिस्ट, परफेक्टली, हाईली, मॉडरेटली।
That's the highly. IQ scores generally highly correlated with academic performance. Then next, according to Piaget, the concrete operational stage refers to or refers from what? 9 to 11, 8 to 11, 7 to 11, 6 to 11. That is the 7 to 11. अगर स्टेजेस पढ़ चुके हैं पियाजे का, देन वहाँ पे आपको मेंशन होगा, वहाँ देख सकते हो 7 to 11. Which one of the following statement about the development is correct? Development proceeds from birth and adolescence in a forward manner and then it goes backward. Development changes go forward in the straight line. Development occurs at a different rate among different individuals. Development occurs at a very fast pace from birth till adolescence, then it stops. So development never stops. डेवलपमेंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता, या फिर डेवलपमेंट एक बार स्टार्ट हो गया बर्थ पीरियड से एंड फॉरवर्ड मैनर पे चला देन बैकवर्ड होगा. तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वन, दैट इज डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग द डिफरेंट इंडिविजुअल्स. डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट पैटर्न में नहीं होता, सेम पैटर्न में है बट उसका जो पेस रहता है, रिदम रहता है, डिफरेंट करता है. नेचर ऑफ चिल्ड्रन आर लाइक इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, डिस्ट्रक्टिव. नेचर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज द ऑलवेज होता है इमिटेटिव. छोटे बच्चे इमिटेट करते हैं, आपको कॉपी करते हैं, तो इमिटेटिव. According to Piaget, in which stage intelligence is demonstrated through the logical use of symbols related to abstract concept. कौन से एज में पियाजे के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को बताया गया है कि ये डेमोन्स्ट्रेट मतलब उसको बताया जाता है लॉजिकल यूज के थ्रू, जहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जो कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्टली प्रेजेंट है थोड़े थोड़े पार्ट करके उसके साथ रिलेट करके वो समझ सकता है. स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, नॉन ऑफ दिस. दैट इज द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल. लॉजिकल थिंकिंग है. 30. Question number 30 पे आगे. According to Piaget, which one of the following factors plays an important role of influencing development? Development को influence करते हुए कौन सा स्टेज आप बोल सकते हैं या कौन सा फैक्टर बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है? That is reinforcement, language, experience with the physical world or imitation. That is the experience with the physical world. Physical world में बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, हर एक कुछ चीज़, लैंग्वेज भी है, रिवार्डिंग भी है, इमिटेशन भी है, सब कुछ मिला के जब आता है दैट इज़ अ फिजिकल वर्ल्ड के साथ बच्चा जो जो एक्सपीरियंस करे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज बोल सकते हैं वन वर्ड में एनवायरमेंट. डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ इंटेंशन, decisions actions between those that are good and those that are bad. ये जो इंटेंशन और डिसीजन मेकिंग होता है या फिर उसमें डिफरेंसेस आता है गुड एंड बैड के अकॉर्डिंग, ये किस लिए आता है? एथिक्स, मोरलिटी, कॉग्निशन एंड फेथ. ये कौन सी चीज़ में अगर प्रॉब्लम्स आता है तो ये चीज़ें होती है, या फिर कौन सा चीज़ हेल्प करता है? एथिक्स, मोरलिटी, कॉग्निशन, फेथ. बैड एंड गुड थिंग्स के ऊपर हो रहा है तो दैट इज द, आप बोल सकते हैं मोरलिटी. कोलवर का कंसेप्ट था, कोलवर के कंसेप्ट में मोरलिटी मेंशन है. ओके, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा लाइक से कमेंट कर दीजिएगा. एंड ऑलरेडी मैंने चैनल पे छोड़ दिया है कहाँ पे क्वेश्चन सारे मेंशन है. मेरे ग्रुप का नाम है दैट इज़ अ बी एड डिटेलिंग, टेलीग्राम में है, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. एंड जो भी फर्दर क्वेश्चंस जो रहे टॉपिक्स आ रहे, टॉपिक्स को कंसेप्ट वाइज भी क्लियर करें, तो उसके लिए वीडियोस ऑलरेडी है पहले से भी, आप लोग पढ़ सकते हो, वहाँ से बहुत सारे हैं एंड वहाँ से कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. एंड इससे आपका जो भी कंसेप्ट है क्लियर होगा तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड स्टे ट्यून्ड. हैव अ नाइस डे.